Hello everyone, in this video we will solve more questions on area of triangle using determinants. In the previous video we have seen area of triangle using determinants and some problems based on the topic. Also I have shown you how to use the formula of the area of triangle to find equation of the line. In this video we will solve more questions on the same topic. So this is the first question that we will solve, and in this question we have to find area of the triangle for which coordinate of the vertices are given to you. So पहले हम coordinates लिख लेते हैं. So the coordinates are -2, -3, 3, 2 and -1, -8. So these are the three coordinates of the vertices of the triangle using which we can find the area of the triangle. So let me write the formula for area of the triangle. So formula is area equals to modulus of half into determinant of, last column will be 1, 1, 1 and remaining column will be x1, y1, x2, y2 and x3, y3. So this is the formula for area of triangle. Now we have to put all the coordinates in this column. ठीक है, इसमें क्या करना है, सारा coordinate put करना है and determinant को solve करना है and we will get the area of the triangle. So let me put the coordinates and find out the area. So half in determinant it will be -2, -3, 3, 2 and -1, -8 and last column will be 1, 1 and 1 determinant. So this is the area. Modulus half, we will expand this determinant using any row any column. ठीक है, so हम लोग कोई भी रो या फिर कॉलम का यूज कर सकते हैं. लेट मी यूज कॉलम 3 विच इज एंड उसका साइन क्या था, प्लस माइनस एंड प्लस, ये था साइन फॉर द कॉलम 3. अब इस साइन को यूज करके डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करना है. सो 1 एंड क्या आएगा, 1 फर्स्ट टू थर्ड कॉलम में, फर्स्ट टू थर्ड कॉलम एरेज करने पर दिस एलिमेंट्स विल कम इन द डिटरमिनेंट. ठीक है, सो डिटरमिनेंट ऑफ 3, 2, -1, -8. नेक्स्ट एलिमेंट इज 1 एंड साइन इज माइनस, सो -1. देन डिटरमिनेंट, अब क्या आएगा, ये जो एलिमेंट है ये सेकंड और थर्ड कॉलम में, सेकंड और थर्ड कॉलम एरेज करने पर दिस एलिमेंट्स विल बी रिमेनिंग, इसको पुट करना है डिटरमिनेंट में. सो पुट करने पर -2, -3 and -1, -8. What is the next element, which is 1 plus 1. So 1 is the element, plus is the sign, so +1. अब इसका रो कॉलम इरेज करना है. So this is in the third row, third column. So third row, third column इरेज करने पर this element will be remaining. So this element will come in the determinant. So -2, -3, -1, -8. ठीक है, so these are the, so this is the expansion of the given determinant. So now we will solve this. So half modulus half 1. ठीक है, 1 लिखने का फायदा नहीं है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 ही जो वैल्यू वो आएगा. सो इसको एक्सपांड करना है, सो इसको मल्टीप्लाई करना है, देन माइनस करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, सो 3 into -8 is -24 and 2 into -1 is -2. So minus of -2. ठीक है, देन माइनस, तो लेट मी पुट द राइट ब्रैकेट, ये आएगा डिटरमिनेंट एंड ये आएगा ब्रैकेट के अंदर, देन -1, देन इसको एक्सपैंड करना है. सो -2 into -8 is 16, -3 into 1 is 3, -3 into -1 is 3. Next is +1 and in bracket -2 into -8 is 16, minus -3 into -1 is -1 is +1. सो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है क्योंकि ये दोनों सेम लिख दिया. सो +1 इज इन द थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसको इरेज करने पर दिस एलिमेंट विल कम इन द डिटरमिनेंट, बट यहाँ पे हम ये गलती लिख दिए. ठीक है, सो इसको इरेज करके मेरे को सही करना है इसको. सो ये होगा 3 and 2. ठीक है, ये एलिमेंट आएगा ना, ये एलिमेंट आएगा. नाउ इसको एक्सपैंड करने पर ये नहीं आएगा, सो इसको एक्सपैंड करने पर आएगा -2 into 2 is -4, -3 into 3 is -9. ठीक है, ये है करेक्ट, ये है करेक्ट एक्सपेंशन. अब इसको सॉल्व करना है. सो 1/2 -24 + 2 is -22.
this will become 13 minus 13, and minus 4 plus 9 is plus 5. ठीक है, ये आएगा मॉडुलस के अंदर. नेक्स्ट 1/2 इन मॉडुलस, ये सॉल्व होके क्या हो जाएगा? सो इफ यू add this, it will become minus 35. Minus 35 plus 5 is minus 30. ठीक है, so minus 30 divided by 2 is minus 15. Modulus of minus 15 is plus 15. So plus 15 is the area of the triangle whose vertices are these. ठीक है, so this is how you solve the this is how you find out the area of the given triangle. Next we will see question number 2. सो दिस इज द प्रॉब्लम जिसमें ये जो पॉइंट्स दिए ये कोलिनियर शो कर रहे हैं, मतलब ये जो पॉइंट्स है दीज पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन. ठीक है, सो ये शो करने हम लोग को, लाई ऑन द सेम लाइन का मतलब ही कोलिनियर होता है, तो ये शो करने हम लोग को. सो टू शो दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर वी हैव टू प्रूव दैट एरिया ऑफ दीज पॉइंट्स, एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाई दीज पॉइंट्स इज जीरो. ठीक है, ये हम लोग को प्रूव करना है क्योंकि एक लाइन का एरिया जीरो होता है. ठीक है, सो अगर एरिया जीरो आता है दैट मीन्स these points lie on the same line. We just have to apply the formula of area on these 3 points and we have to prove that area is zero. Therefore ये जो points है वो line form करता है. ठीक है, इतना ही हम लोग को show करना है. So we will apply the formula of area. So area is half determinant x1 y11 x2 y21 x3 y31. ठीक है, this is the फॉर्मूला फॉर द एरिया. अभी सारा कोऑर्डिनेट को इसमें पुट करना है. सो हाफ मॉडुलस हाफ डिटर्मिनेंट, सो ए बी प्लस सी इज x1 y1, बी सी प्लस ए इज x2 y2 एंड सी ए प्लस बी इज x3 y3. लास्ट कॉलम विल बी 1 1 1. सो दिस इज द ये अब क्या किया हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, मतलब कोऑर्डिनेट्स को पुट कर दिया. ठीक है, अब इसको सॉल्व करने बेसिकली. सो लेट्स यूज द लास्ट कॉलम. तो उसको साइन किया था प्लस माइनस प्लस, ये साइन था, इसको अप्लाई करने अभी. सो बेसिकली एक्सपांड करने पर, मॉडुलस एक्सपांड करने पर, सो फर्स्ट एलिमेंट इज प्लस 1, देन मल्टीप्लाई करना है बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी इंटू सी प्लस ए. सो बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी इंटू सी प्लस ए. ठीक है, हम तो डायरेक्ट करते हैं. देन minus 1, so let me write this in the next line. minus 1 इस रो एंड इस कॉलम में है. इरेज करने पर ये 4 एलिमेंट आएगा, इसका डिटरमिनेंट लेना है. सो डिटरमिनेंट लेने पर क्या आएगा, a इंटू ए प्लस बी. ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई कर लिया, अब ये दोनों मल्टीप्लाई करना है माइनस सी इंटू बी प्लस सी. ये मल्टीप्लाई कर लिया. नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, प्लस 1. सो प्लस 1, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम है, इसको इरेज करने पर ये 4 डिटरमिनेंट में आएगा, तो इसका डिटरमिनेंट हम डायरेक्टली लिख लेता, ए इंटू सी प्लस ए माइनस ये मल्टीप्लाई करने पर बी इंटू बी प्लस सी. ठीक है, ये हो गया डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन. अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने पर ये 0 आ जाएगा. सो हाउ डू वी सॉल्व दिस? सो सिंपली ब्रैकेट ओपन करना है, अंदर मल्टीप्लाई करना है. सो हाफ, सो मल्टीप्लाई करने पर ए क्या बन जाएगा, बी इंटू ए बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी इंटू सी सी स्क्वायर माइनस ए सी. सो बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी. नेक्स्ट क्या है, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी माइनस सी इंटू बी माइनस सी बी माइनस सी इंटू सी माइनस सी स्क्वायर. सो प्लस एंड यहाँ पे बाहर में एक माइनस भी है. ठीक है, सो माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर. द नेक्स्ट क्या है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है. सो प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी, ये हम अंदर मल्टीप्लाई कर लिया. ठीक है, नाउ अब ये जो -1 है, ये जो -1 है इसको हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर लेना है. सो
एंड यहाँ पे कुछ कैंसिल हुए उससे पहले, लाइक ये बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ज़ीरो हो जाएगा, और कुछ आई थिंक माइनस ए सी प्लस ए सी ये भी ज़ीरो हो जाएगा. सो व्हाट आर द रिमेनिंग? ए बी. ठीक है, ये ए बी. नेक्स्ट क्या है? माइनस सी स्क्वायर. देन हम माइनस वन को साथ साथ अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं. माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर. नाउ यहाँ क्या रिमेनिंग है? ये दोनों रिमेनिंग है. सो प्लस ए स्क्वायर माइनस बी सी, ये हम मल्टीप्लाई कर दिए. सो यू कैन सी सब कुछ कैंसिल हो जाएगा. माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी बी सी माइनस बी सी. ठीक है, तो सब कैंसिल आउट हो गया. देयरफॉर ब्रैकेट के अंदर क्या है? जीरो है. जीरो इंटू हाफ इज जीरो, मॉडुलस ऑफ जीरो इज जीरो. सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज जीरो. ये आ गया. देयरफॉर ये जो कोऑर्डिनेट है, जो ट्राइंगल है, ठीक है, जिसका वर्टिसेस दिया हुआ है, इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया जीरो होगा. ठीक है, एंड जीरो का मतलब क्या हो गया? कि तीनों पॉइंट के लाई ऑन द सेम लाइन, मतलब फॉर्म ए लाइन. देयरफॉर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, इसीलिए यहाँ पे जीरो है. ठीक है, सो हेंस प्रूव्ड. ठीक है, so this is how you prove that the points are collinear. Next we'll move on to question number 3. So this is the next question जिसमें दिया हुआ है ये जो तीन पॉइंट है, ये तीन पॉइंट मिलके ट्राइंगल फॉर्म करते हैं एंड उस ट्राइंगल के एरिया दिया हुआ है. ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ के. ये जो कोऑर्डिनेट के अंदर में जो के दिए, इसका वैल्यू निकालना है, सो दैट ये तीनों पॉइंट मिलके ट्राइंगल फॉर्म करते हैं जिसके एरिया 4 स्क्वायर यूनिट्स है. ठीक है, सो सिंपली विल अप्लाई अगेन द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल. वो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे. So let me write the formula. So area is half determinant x1 y1 1 x2 y2 1 and x3 y3 1. ठीक है, ये है फॉर्मूला. नाउ आई विल पुट ऑल द पॉइंट्स इन द फॉर्मूला एंड एरिया का वैल्यू भी पुट कर लेंगे. सो व्हाट विल बिकम? इट विल बिकम 4 इक्वल टू मॉडुलस हाफ डिटर्मिनेंट. सो k 0 4 0 एंड 0 2 1 1 1. ठीक है, ये पुट कर दिया हम सारा कोऑर्डिनेट्स एंड एरिया का वैल्यू. अब इसको सॉल्व करना है. सो फर्स्ट वी हैव टू रिमूव दिस मॉडुलस. तो हम बताया था मॉडुलस हटाना है. मॉडुलस रिमूव करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? लेफ्ट साइड में प्लस माइनस आ जाएगा. सो सिंपली यहाँ पे प्लस माइनस 4 इक्वल टू हाफ डिटर्मिनेंट के 0 1 4 0 1 एंड 0 2 1. ठीक है, नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस टू हियर. मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाएगा? प्लस माइनस 8 equals to. Now we will expand this determinant using column 2, क्योंकि column 2 में मैक्सिमम जीरोज है. सो column 2 का साइन क्या था? माइनस प्लस एंड माइनस. सो ये दोनों एलिमेंट लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये एलिमेंट लेने से सॉल्व हो जाएगा. सो व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट इज माइनस टू. डिटरमिनेंट के अंदर क्या आएगा? इसका रो कॉलम इरेज करने से ये 4 एलिमेंट आएगा डिटरमिनेंट के अंदर में. सो k 4 1 1. ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है. So plus minus 8 equals to minus 2. This will become k minus 4. K minus 4. ठीक है, so minus 2 अंदर मल्टीप्लाई करने पर it will become minus 2k plus 8. Now plus minus 8 is minus 2k plus 8. इसको सॉल्व करना है. ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए जो प्लस माइनस 8 है, इसको एक बार प्लस के साथ लेना है और एक बार माइनस के साथ लेना है. सो 8 इक्वल टू माइनस 2k प्लस 8 एंड माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस 2k प्लस 8. ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है. सो 8 8 कैंसिल हो जाएगा. माइनस 2k इक्वल टू 0 एंड k विल बी इक्वल टू 0. एंड फ्रॉम हियर राइट साइड में प्लस 8, लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस 8 इक्वल टू माइनस 2k. माइनस 8 इज माइनस 16 इक्वल टू माइनस 2k. माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. k विल बिकम 16/2 विच इज 8. ठीक है, सो दोनों वैल्यू इधर में सही है. k equal to 0 and k equal to 8. So if value of k equal to 0, तब भी मेरे को एरिया 4 मिलेगा, एंड जब k equal 8 रहेगा तब भी मेरे को एरिया 4 मिलेगा. ठीक है, सो दोनों ही वैल्यू सही है. Therefore this is the answer for the given question. Now we'll move on to question number 4. So in the next problem we have to find equation of the line that passes through these two points. ठीक है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से पास होता वाला लाइन का इक्वेशन को सॉल्व करना है, फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो लेट्स से ये है वो लाइन which passes through the point 1, 2 and 3, 6. Now इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए we have to consider a arbitrary point which is x, y.
ठीक है। सो आर्बिट्री पॉइंट कंसिडर कर लिया x, y। नाउ दीज 3 पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन, एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं, दैट मीन्स ये जो लाइन का एरिया है दैट इज 0, ठीक है। सो टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इन दिस 3 पॉइंट्स, ठीक है, इसमें अप्लाई करना है। एंड एरिया की जगह पे हम लोग 0 पुट करना है, क्यों? क्योंकि ये तीनों पॉइंट मिलकर एक लाइन फॉर्म करता है। सो एरिया ऑफ द लाइन इज 0, देयरफॉर एरिया की जगह पे 0 वैल्यू पुट करना है। एंड उसको सॉल्व करने पर वी विल गेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट फॉर्मूला फॉर एरिया। सो एरिया इज हाफ मॉड्यूलस x1 y1। सो ये है एरिया का फॉर्मूला इन विच वी हैव टू पुट वैल्यू ऑफ एरिया इज 0, क्योंकि वो लाइन है। नेक्स्ट हाफ मॉड्यूलस लेने का फायदा नहीं है क्योंकि 0 है लेफ्ट हैंड साइड में। हाफ कोऑर्डिनेट इज 1 2 एंड 3 6 एंड थर्ड पॉइंट इज आर्बिट्री पॉइंट विच इज x, y। इसको सॉल्व करने पर वी विल गेट एरिया। नाउ टू सॉल्व दिस सिंपली वी विल यूज कॉलम 3 विच इज जिसका साइन क्या है प्लस माइनस प्लस। नाउ ये 2 मल्टीप्लाई करने पर इट विल बिकम 0, ठीक है। सो 0 इक्वल्स टू वी विल एक्सपैंड दिस डिटरमिनेंट अलोंग कॉलम 3। कॉलम 3 में क्या साइन है, क्या एलिमेंट है? फर्स्ट एलिमेंट इज +1, ठीक है। देन डिटरमिनेंट के अंदर क्या आएगा? डिटरमिनेंट के अंदर आएगा 3 6 x एंड y, ठीक है। सो +1 जो है फर्स्ट कॉलम में, इरेज करने के बाद ये एलिमेंट रहेगा, इसको डिटरमिनेंट पुट कर दिया। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? -1। सो 1 इज द एलिमेंट, साइन इज द माइनस, इसीलिए -1। अब सेकंड और थर्ड कॉलम इरेज करना है, ये एलिमेंट को डिटरमिनेंट में पुट करना है। डिटरमिनेंट ऑफ 1 2 x एंड y। नेक्स्ट एलिमेंट इज 1, साइन इज प्लस। अब क्या है, ये थर्ड कॉलम में इरेज करने पर ये एलिमेंट आएगा, इसको डिटरमिनेंट में पुट करना है, ठीक है। सो ये हो गया एक्सपेंशन। अब इसको सॉल्व करना है। सो 0 इक्वल टू इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा? 3y - 6x माइनस, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा? y - 2x। नेक्स्ट इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा? 6 - 6, ठीक है। सो ये बन गया 0। सो 3y - 6x - y + 2x, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर दिया तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो 3y - y विल बिकम 2y - 6x + 2x विल बिकम -4x। इसको ऐड करने पर 2y एंड इसको ऐड करने पर -4x। अब 2y को हम लेफ्ट हैंड साइड ला सकता, 2y = 4x। हम इसको 2 से डिवाइड कर सकता, सो y = 2x, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट passes through the point 1, 2 and 3, 6 is y = 2x, y = 2x. So this is the equation of the line. So this is it for the video. In the next video we will see minus and cofactors, how to find minus and cofactors of the element. So share and subscribe the video. Thank you for watching the video.